So that Go ahead. so we already gave him advance. So that will cause us a loss Okay. for that. So in that case, we have only the two options that we can request our client to extend the deadline of the project, or we should hire some additional manpower to complete the project within the deadline. Okay. Just a second, sorry to interfere. I would just like you all to come on the video mode as well so that you can look at each other and participate in the meeting. That will create more connection. Sure. Okay. Yes. So I would suggest, if it's in our bandwidth, if it's in our bandwidth and potential, we should complete this by giving leverage to our all our resources, because what we are doing is a cutting edge product in the market, and it can disrupt the market, and the hype is also high among the users and our audience. And we already launched our poster with the brand ambassador, Okay. so that also counts. So I think we should complete this Yes, by I totally agree with you. And one more, but I would like to suggest that we should be realistic about our bandwidth, and we should not hurry to complete the project, because quality matters the most for our client, and that's why I request you. We should either extend the deadline, or we should. Either or we should hire some additional manpower to complete the project within the due date. This is my suggestion on this project, as this is a critical situation, so marketing head can suggest us the next move. so if we have anything like other product in our pipeline, so we can launch that Sure. to complete that I agree with you. goal Right. and Right. Right. create Right. expectation with the audience who are waiting. That hype is. So, can we need can we need a more bandwidth or not? This situation and this product. Do Yes, we of need course. do we need more bandwidth? Yeah. Hmm. Do Yes, we of more course. bandwidth? Yes, of course, we need more bandwidth to for the completion of this critical project, and we should be more as early as we can. It will be better for us. Okay. Got it. I would like you are discussing about the problems, and did you discuss about the like problem that the client is? Are you discussing the problems on the client's end? Like what critical, as you have mentioned in the like strategy alignment check backstory, that a flagship project is running behind schedule and internal tension is rising. The delivery team claims the delay is due to unexpected dependencies, while marketing is worried the shift will dilute the launch impact and confuse external messaging. This is the core idea, right? And Rahul is the project head. So you are directly related to the client, okay? And the marketing is in loop. So in other words, the team lead who is actually working on the design project and the marketing lead, the marketing head, he's concerned about the dilution of his sales of the product launch. So Correct. the those discussions should be considered. So Rahul, you have to take this statement, like you have to just say or give some opinions on behalf of the clients also. Like what has the client conveyed to you? Are there any deadlines like that?
Yes, of course, we have the deadlines and we have to complete the project till 15th of the Jan. And the best, I would suggest that we can fulfill part supply with which matter most to the client, and remaining supplies we can fulfill even after the due date. That will work with the client. Okay. Or if we need to go, if we need to complete the whole supplies within the due date, then we need to hire extra manpower. Okay, now, as you have you have already created a backstory here, and you have mentioned that the delay is because some kind of unexpected dependencies. So, what are the unexpected dependencies that the team lead is facing? You have to say that, Ziba. Sorry, Uh, ma'am, can you repeat? like here, you have mentioned in the storyline that the delivery team claims the delay is due to unexpected dependencies. So, this is your team. So your team members are not working as per the schedule because there are some unexpected dependencies. We have to discuss about the unexpected dependencies. What unexpected dependencies has arise? So, unexpected delivery. Like when does a project gets delayed? There will be, you can say that some of your team members are on leave, and you have to put request to the project head that I need more team members, I need more I request you to support me with some other team members from some other departments, or whoever is available right now, whose bandwidth is permitting, so that we can ch- like uh, what do you say, realign all the works, and we can just make the project work as per the schedule. So you have to talk about the unexpected dependence. What are unexpected dependencies? That it can be anything. Like it can be lack of staff members. It can be staff members not technically sound, or not skilled or upskilled according to the project demand. You have to raise this issue to the project head. So he will have to arrange some induction program to upskill your team members, or he will be providing some seniors to support, or get this flagship project done. Got it? Yes, ma'am. I Let's got say it. you have to complete it to Rahul that I understand your concerns, and I know that there is the team has delayed the delivery of the project, as there were some unexpected dependencies, like few of the team members are not available as they are on leave, and we have in the current team we have people who are not very experienced, and they we need some That time experience. so that Yes, time I'll handle. yes. Handle. Yes, yes. So you have to say that. Yeah, Okay. So try yeah. it. Try it. So that time I'll handle from my side, because it's a product like a delay. So, No, and you cannot handle a project on your side. This okay. is the problems that we face in the corporate sector. We have to delegate responsibilities. Yeah, We cannot do everything on our own. It's a project for a client, and it's a flagship project. There can be many discrepancies that can occur. So you have I to know. raise this issue, like raise a flag. Okay. You have to raise the flag to your project head that these are the situations and I need support in this. And after the support is after the support is initiated, we can definitely work on the project, and everything will fall align as per the goal. Okay. Got it? Yeah, So got it. I want to do it make you restart again on this discussion. You have to understand the situation and then make the discussion, not just randomly say anything. Every one of you. Yeah, but this is first time for me, and I'm No, very no, no, Ziba, I'm nervous. not discouraging you. No, no. No, I'm I'm very telling, this is a feedback for everyone. very afraid that time. No, no, Um, you are doing well, no, Ziba. I'm very confused. I can't. मुझे पता ही नहीं कि मुझे बोलना है क्या है, मुझे कुछ टीम के बारे में पता ही नहीं आया था, मैं टीम मैं लीडर तो हूँ ये बट भी भूल गया कि मार्केटिंग मैनेजर कौन था, और कंट्रोल नहीं टेक्निकल, हो रहा। सॉरी, नहीं वो नहीं, वो सब। बात नहीं है Ziba, you are doing well. Even for the first time you have did very well. तुमने अपने प्रैक्टिस हिसाब कर से रही जो सेंटेंसेस बोला है वो अच्छा सेंटेंस बोला है. मैं सिचु जो अनमोल ने जो सिचुएशन दिया है उस पे मुझे कॉन्टेक्स्ट बनाना है ना, तो बट ये कॉन्टेक्स्ट बहुत
टफ क्वेश्चन है ये, बहुत बड़ा टफ सिचुएशन है मेरे लिए कि मैं इसको मैम हैंडल मैं नहीं। टीम लीड बन जाता हूँ, मैं टीम नर्वस लीड नहीं बन है, जाता हूँ। नर्वस नहीं होना है इस चीज में, इसमें नर्वस मैम नहीं होना है आपको। मैं बोल रही हूँ कि ये चीज हैंडल कैसे करना है, इसमें क्या क्या बोल सकते हैं। अब देखिए, हर चीज का मैं आपको आज एक मंत्र बता रही हूँ। जो आपको ये प्रॉब्लम है ना, किसी भी नई चीज को देख के डर जाना, हम्म। ये आपको हर काम में रोकेगा। ओके। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि आज के डेट में आप तो मेरे साथ क्लास में हैं and यहाँ पे आप अपना प्रॉब्लम्स खुल के बता रही हैं, तो उसी हिसाब से मैं आपको गाइड कर पा रही हूँ, राइट। बट दिस या। इज अ सिचुएशन इन द मार्केट। दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग दे नो कि मार्केट, जो भी आप किसी भी कंपनी में है, किसी भी तरह का सिचुएशन अराइज हो सकता है, तो उस सिचुएशन को हमें हैंडल करना सीखना है rather देन राइट। डर जाना। राइट। ठीक है। ये तो दैट्स माय प्रॉब्लम। दैट इज योर दैट्स माय। प्रॉब्लम जीबा। तो मैं आपको एनकरेज कर रही हूँ कि ऐसा आपके जैसा लेवल पे हमने भी कभी काम किया था। जब मैंने करियर की शुरुआत की थी तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मेरे सामने भी आए, बट ओके। मुझे मेरे मेंटर्स ने सिखाया कि किसी भी प्रॉब्लम्स को, अगर प्रॉब्लम समझोगे तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और पहले ही अगर डर जाओगे तो हमें पहले उस प्रॉब्लम को समझना होगा। हर प्रॉब्लम को, लाइक कुछ भी है कि मैंने तो पहले कभी नहीं किया है, कैसे करूंगी। लाइक आई रिमेम्बर माई फर्स्ट क्लाइंट कॉल with a client from San Francisco, and it was the first, like when I started my career very young, back in the year 2008 or 9, I said. So उस वक्त when I was associated with in a company where I was into the quality department, so where I had to monitor different calls and different client interactions of the employees. So there, ओके। in a project I had to directly contact the client. That was my first conversation with the client. It was a challenge. तो और मैंने कभी भी उससे पहले नेटिव से बात नहीं किया था। और तुम्हें पता है, जो अमेरिकन है, डिफरेंट जोन का लैंग्वेज डिफरेंट है। ये अगर हम, मेरी जो क्लाइंट है वो भी कुछ ऐसे ही है, यूएस से है, कुछ यूके हाँ, से। तो ये बट ये अभी देखो, अगर तुम कनाडा वाले क्लाइंट से बात कर रहे हो, उसका टोन अलग होगा। सैन फ्रांसिस्को वालों का अलग है। राइट। राइट। कैलिफोर्निया, सबका ही अलग टोन एक है। तो वो मेरे लिए एक चैलेंज था। पहले तो 2-3 कॉल्स ऐसे गए कि मैं उनकी बात ही समझ नहीं पा रही, उनका कंसर्न क्या है। इस टाइम ठीक मेरे है। साथ भी यही हो रहा है। तो टेक इट एक करेज, एक सीख की तरह लो इसको। इसमें डर नहीं जाना कि मुझे कुछ नहीं आता है। तो मैंने ये फेस किया था कि, तो मैंने क्या किया ना, मैं घर पे आके आई यूज टू डू दिस, लिटरली आई एम टेलिंग यू, लाइक आई यूज टू लिसन टू ऑल अमेरिकन एक्सेंट कॉन्वर्सेशंस ओके। फॉर आवर्स, ताकि मैं उस कॉन्वर्सेशन उससे ईयर मेरा एडजस्ट हो जाए। और मुझे मॉनिटरिंग करने में, क्योंकि मेरे मेरे लिए भी फीडबैक आ रहा था मेरे टीम से, दैट नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। 2-3 कॉल्स, क्लाइंट कॉल्स अगर मतलब ऐसा हो जाए तो क्लाइंट छोड़ देगा ना, लाइक ही विल जस्ट गो ऑफ द प्रोजेक्ट। तो मैंने ऐसा, आई विल से दैट मैं बहुत घंटों लगाए मैंने उनकी बातें सिर्फ सुनने के लिए। लाइक जो यूट्यूब पे जितना भी अवेलेबल था, या जो भी कंटेंट मेरे को मिला, मैंने घंटों सिर्फ वो सुना है। एंड आई ट्राई टू रिजॉल्व द इशू इन अ वे वेयर आई हैव टू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम कि मेरा इशू कहाँ पे आ रहा है। तो मैंने मैम जब फर्स्ट फर्स्ट स्टेप ये है कि पहले आप सुनो, राइट। यस, पहले सुनो, ओके। उसके बाद ही आप सॉल्व करोगे। जैसे कुछ भी चार चीज है जो आपके लिए न्यू है, अगर कुछ न्यू है, उसको पहले समझना होगा डिवाइड करके, स्टेप बाय राइट। स्टेप, कि इसका मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे ये वाला अगर सिचुएशन है, उस वक्त तो मैंने ऐसे डिवाइड किया कि मेरा प्रॉब्लम कहाँ पे है। मुझे उनकी भाषा में के, लाइक जो उनका जो नेटिव स्लैंग है वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। सो आई फोकस्ड ऑन दैट एरिया। तो मैंने डिफरेंट जोन्स के ऑडियोज सुने, और जब मैंने हैबिचुअल किया था तब मुझे उनकी भाषा बिल्कुल आसान हो गई मेरे लिए। और उसके बाद देखो, अमेरिकन एक है और ब्रिटिश अलग है, उनका दोनों का एक्सेंट में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। तो दोनों ये चीजें हमने सुन सुन के, लाइक अपने लूपहोल्स को पहचानने होंगे, उस पर वर्क ऑन करना होगा। कभी भी डर नहीं जाना कि नहीं होगा। मैं कभी जिंदगी में नहीं डरती हूँ, आज भी नहीं डरती हूँ। अगर मुझे अभी भी कुछ पता नहीं है, इट इज नेचुरल, ह्यूमन बीइंग है हम। ह्यूमंस का नेचर ही इरोनियस होता है। इरोनियस मतलब दे आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। ठीक है। अब इस सिचुएशन पे आते, इस सिचुएशन पे तोड़ना है। अगर तुम टीम लीड हो तो तुम्हें ऑलरेडी इस सिचुएशन में बोला गया है कि ये प्रोजेक्ट है जो डिले हो रहा है, और तुम इसके लिए जिम्मेदार क्यों, क्योंकि तुम्हारा टीम इस पे काम कर रहा है।
अब तुम्हारे पास एक रीजन है कि तुम्हारा टीम पे बहुत सारे डिपेंडेंसीज आ गए हैं, मतलब सारा जिम्मेदारी तुम्हें पे ही आ गया है, और तुम्हारे पास स्टाफ का काउंट नहीं है, मेंबर्स की स्किल्ड स्टाफ नहीं है। तो वो इशू तुम्हें फ्लैग रेस करके अपने लाइक प्रोजेक्ट हेड को बोलना पड़ेगा। प्रोजेक्ट हेड फिर उसमें क्रिटिकल अलाइनमेंट करेगा या जो भी करेगा, वो फिर मार्केटिंग हेड से ये बात करेगा कि हमारे पास कितना टाइम है, क्या हम इस लॉन्च को लाइक डिले कर सकते हैं। इस तरह का डिस्कशन फ्लो होगा। गॉट इट? और मे बी प्लेटफॉर्म में वेंडर लिमिटेशंस, प्लेटफॉर्म में। प्लेटफॉर्म और वेंडर लिमिटेशन, लाइक लाइक जैसे लाइक स्पेयर ओईएम एंड एपीआई वेंडर्स हम्म वगैरह जो रहते हैं, लाइक हम्म। जो भी अपना टूल है या फिर अपना जो प्रोडक्ट है उसका पार्ट हम्म वगैरह, हम्म लाइक जो मैन्युफैक्चर करके देता है, हम्म वो पार्ट देन असेंबल होता है, सो हम्म। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि अगर ये डिलीवरी, जैसे अगर ये इशू है कि स्टाफ नहीं है आपके टीम में काम करने को या स्किल्ड लेबर्स नहीं है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर आपसे पूछेगा मार्केटिंग से कि लाइक इज देयर लाइक एनी रूम फॉर लाइक पोस्टपोनिंग दिस लॉन्च, विल इट अफेक्ट द मार्केटिंग ट्रेंड। ये आपसे प्रोजेक्ट हेड पूछ सकता है। फिर आपको अलोंग विथ उसका आंसर देना पड़ेगा कि कितना लाइक कितना आपको मतलब लाइक क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो टूल एपीआई वेंडर और प्लेटफॉर्म अपडेट broke backward compatibility workarounds exist but weren't planned for. ओके, ठीक है। क्रॉस टीम bandwidth mismatch, a critical internal team design QA content analytics is stretched thin, their delivers were assumed available but aren't। तो वही है ना, तो ये चीजें प्रॉब्लम, ये रेज फ्लैग रेज कौन करेगा इन सब प्रॉब्लम्स का? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स? टीम लीड। तो वही तो टीम लीड ये प्रॉब्लम्स हाईलाइट करे, इसके बाद राहुल को तो सोल्यूशन देना है ना। सो व्हाट विल राहुल से ऑन दिस? चलो जीबा, मैं टीम लीड बन रही हूँ, राहुल यू आर द प्रोजेक्ट हेड, ठीक है? या या मैं इसमें सुनूंगी। हाँ, एक बार सुन लो, सीखोगे ऐसे ही। हम हाँ। हमेशा गलतियों से सीखते हैं। ओके, सो अ, एक सेकंड पहले मैं भी बता, लाइक मार्केटिंग का ये कंसर्न है कि जो उन्होंने मतलब एक हाइप क्रिएट कर दी है, जो एक हम्म होता है सोशल मीडिया में, एंड वो जो अपना ब्रांड एम्बेसडर है उसको उसको उसका पोस्टर डल गया है एंड उसको एडवांस भी दे दिया गया है। सो क्लाइंट जो अपना लाइक जो इन्वेस्टर है हम्म उसके लिए कंसर्न है कि अब जो उसको एडवांस दे दिया गया है भारी, हम्म। उसका लॉस जाएगा क्योंकि एडवांस तो वापस आता नहीं है अगर ठीक डिले है, हो गया तो। सो ठीक है। ये कंसर्न है मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग का ये आंसर कि ये हो नहीं सकता, अब राहुल को इमीडिएटली एक टीम प्लान करना होगा, हम्म फास्ट ट्रैकिंग टीम। हम्म। ठीक है राहुल? Yes, ओके, ma'am. आई एम द टीम, लाइक आई एम द टीम लीड, सो वी कैन जस्ट टॉक ऑन दिस। चलो, लेट्स स्टार्ट। प्रोजेक्ट मैनेजर विल स्टार्ट द मीटिंग। Okay. Hello, everyone, and welcome to the meeting. As you know that we are running late for to complete our one of the critical flagship project. So we are here to discuss the sorry. We are here to discuss the what are the critical points, what are the root cause of the delay of the project. So I would request our team leader to elaborate on the issues. Thank you for joining the meeting. And I was about to discuss regarding the unexpected delay. And I really apologize from the entire on behalf of the entire team. But I would just like to highlight some of the unexpected dependencies from that vendor. Like right now, the team that I am assigned with, the team's bandwidth has been stretched, and it is becoming very difficult to manage both fixes and new requests. So as we had some interactions with the clients, so the client has been giving us new updates every day, and the team that we have right now is not that much skilled to address all the fixes and new requests. And I guess that I had already mentioned to our project manager that some of the skilled laborers are on leave for about 20 days. So that is unexpected dependency, and that's the reason that we are delayed, and we have we are not been able to meet the deadline. Okay.
And as you said that our main dependency is the less skilled laborers and the new update from client every day. Correct. So first of all, I would like to ask our marketing head, like, could we extend the deadlines of the meeting? Is our client ready to extend? So my concern is that we already created our hype in the social media and launching our coming soon posters and posters with our brand ambassador also, and also gave brand ambassador advance. So my concern is our investor will not be so happy if they get to know that we are losing our money in advance of brand Okay. ambassadors. So Okay, got it. So, first of all, for our team is facing that new updates from the client. So, I would request you to get an email, written email from the customer, what exactly they need, so that we can work on a single direction and not every day on a new direction. So, it is important to get a written confirmation from the client what exactly they need. Second thing, regarding the skilled labor, we will hire some additional workforce to complete this project within the deadline. And I will write an email to our HR team to fulfill this requirement immediately. I have a request, if you allow me to speak for a moment. Of course. So the core like the what I have noticed while working on the project since 30 days, that we need a core platform stability, and the regular minute updates or adding parallel features is overloading the team, and it will compromise quality. So I would request the marketing head to meet with the negotiation or get into the negotiating term with the client, so that we can for the launch we can work on the core platform, and we can gradually use the additional benefits or parallel features after the launch is made. That will not compromise the quality. And right now it will, like, we have an emergency situation where already our project manager is asking us to or arranging some fast tracking employees to handle this project. So just to maintain the client relationship good, we cannot compromise quality. And I believe that if we keep on working on pushing parallel features, it will destabilize the platform. Okay. so in my opinion, if we can we can create some reels and shorts content of that product of that of like hinting that product, so that we can push the hype more, we can increase the hype. I So agree, like that is completely your marketing concern, but yeah. I just wanted you to get it negotiated with the client that the delivery team will be working on the core platform, and the additional features will be worked upon later, so that the quality is not compromised. So I would Yes. like to ask our project manager also to share his concern regarding this, if you are agreed with it, or like you can we just go ahead with this? Yes, of course. If we are able, if we will be able to deliver our best outcomes, then we should go ahead with this idea. We don't have any issues. Correct. I guess working on the code delivery and selectively support like one feature will generally move the needle for the customers. Right. So, sir, do you agree with us, with ma'am? I will check and do whatever I can do. And I request you to hire some creators and interns to create. I can take some time and create that brand value and increase the hype for, because I believe in this cutting edge technique. I'm sorry to say that right now we don't have the budget to hire fresh employees, and it will also involve a lot of cost in like training them. Right. Hmm. I agree with you, ma'am. We So can hire interns, unpaid interns, if again, we for can. interns, it will be a risky. It's a flagship project, and we cannot risk the client.
So the Yeah, interns sir. are Sorry, like, I would like to add, sir, already a critical project, and we are already late. So hiring an intern will be highly risky for this project. We should only hire some senior employees or the experienced employees so that they can handle the project very easily. I'll not ask you to hire, sir. Like you can just delegate some of the senior employees to handle this project, who can support me in For delivery. for content creation and video making, I'm asking. Oh, for Who can content handle it? creation, you need like right now, see, already the project has been finalized and the budget has been set. So hiring new interns, new content creators will again add, give it like add up to the budget. So the client may not agree and may lose trust. So the Hmm. best part is whatever we have, at least if we can deliver it, we can do the flagship, like we can just like launch the project, and then we can consider your request of hiring new content creators and interns to support you into the content creation. What do you say, Hmm. sir, Mr. Project Manager? Yes, I'm totally agree with you, ma'am. And I think your suggestions are good to proceed ahead. And I will request sir also to review on the suggestion of the ma'am. And let's schedule another meeting to finalize the things once again. Absolutely, I agree. So, like, are you giving a heads up for the next meeting? Like, Yes. when can we meet again? Like, I guess I need a time of 1 week to like realign all the responsibilities. Okay, so I'm planning to reschedule this meeting again next week on Monday. So I hope everyone is available for that. Yes. And I would like Mr. Anmol to like do the negotiation with the client to Yes. focus only on the core platform area and not the additional features that they've demanded. Hmm. Also, I will negotiate with the brand ambassador to your team You also. have to assure us that you are going to negotiate with them and finalize the deal. Yeah. Hmm. देखो अब मैं आपको लाइक मीटिंग तो ओवर गया मैं आपको बस की एज बता अनमोल बहुत छोटा है लाइक यू आर जस्ट यंग वेरी यंग लाइक यू आर इनटू कॉलेज राइट नाउ एंड मैं एक बार आपको बस अपडेट देना चाहती हूँ इस चीज का कि वर्किंग कैसा होता है व्हाट इज द वर्किंग कल्चर एक्चुअली जब आपने किसी का प्रोजेक्ट साइन कर लिया है उस प्रोजेक्ट का एक बजट एलोकेट होता है एम आई राइट राहुल Right. Hmm. तो उस प्रोजेक्ट बजट में हम कुछ भी एडिशनल अपने टीम से नहीं कर सकते लाइक जैसे आपने बोला ना हायरिंग करो पॉसिबल ही Hmm. नहीं है या तो क्लाइंट हट जाएगा फिर आपके लाइक डील से ही Hmm. क्योंकि Hmm. क्लाइंट को तो पैसा बढ़ाना पड़ेगा ना अगर तुम जितना एडिशनल करोगे Hmm. सेकेंडली जो मार्केटिंग टीम होता है उसका क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप है और वो ही क्लाइंट को मनाता है मतलब Hmm. जस्ट लाइक अ व्हाट यू कैन से अपसेट गर्लफ्रेंड द मार्केटिंग Hmm. टीम persuades the client. I have Hmm. faced a lot of time this situation I have faced so many times. Yes. So the Means my client is client, your girlfriend and she is upset. So you have to Yeah. negotiate and you have आपके बैकलॉग में कौन कौन है प्रोजेक्ट है टीम कंटेंट डिलीवरी वाले वो तो आपके पीछे कर रहे हैं मतलब जो भी करना है Hmm. मतलब वो आपको फंसा चुके हैं और आपको अब मतलब वो सब करना है लाइक यू हैव टू हाँ. मैनेज मूवी दिखाने हाँ. ले जाना है लाइक कुछ भी करना है लाइक यू हैव टू जस्ट मैनेज द गर्लफ्रेंड दैट इज योर क्लाइंट Hmm. Hmm. so this is the case so to an extent Anmol आपने समझा है and your conversation was all right but again official conversation समझने में थोड़ा टाइम लगेगा एंड Hmm. समझ के करने में टाइम लगेगा अभी जैसे हमने किया लाइक मेरे लिए लाइक I just worked like I just calculated my role play into the card that the backstory you have created सो Yeah. इस तरह से आपको भी करना है क्योंकि जो भी ब्लैक बैक स्टोरी उन्होंने क्रिएट किया तो जो भी अब पॉइंट यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड डिपेंडेंसी तो क्या क्या हो सकती है Hmm. अनएक्सपेक्टेड डिपेंडेंसी मतलब जो चीज जायज नहीं है मतलब जो हो ही नहीं सकता इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशंस जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको खाना बनाना है आपने डिसाइड किया मैं दाल बनाऊंगी एक सब्जी बनाऊंगी रोटी बनाऊंगी एंड सलाद ठीक है अब आपके फैमिली मेंबर ने बोला कि नहीं नहीं आप ये भी चूरमा भी बनाओ हलवा भी बनाओ 2 तरह का स्वीट डिश होना चाहिए और 5 तरह की सब्जी होनी चाहिए तो ये क्या है दीज New आर things that अनएक्सपेक्टेड ठीक are है unexpected. अनएक्सपेक्टेड डिपेंडेंस ये ऐसा क्लाइंट करता भी है Hmm.
जैसे अनमोल तुमने जिसका भी आइडिया नहीं इंटर्नशिप, होता। हाँ ऐसा होता ही है। कई बार क्लाइंट आपको अपडेट देता रहता है कि ये करो वो करो, इसमें आपने कुछ डिजाइन बनाया फिर बोलेगा इसमें ये करो, इसमें ये हम्म नहीं है, इसमें ये मतलब कुछ फीचर ना ऐड कुछ कर कुछ लो। चेंजेस वगैरह करवाते रहता यस, है। चेंजेस। तो हम्म हाँ, उससे क्या होता है, टीम का मोराल डाउन होता है एंड टीम क्वालिटी वर्क नहीं दे पाता है। राइट। तो यही नेगोशिएशन था यहाँ पे, टीम लीडर ने अपना इशू रखा कि हमारे पास टीम मेंबर की कमी है और कॉम्पिटेंट टीम मेंबर्स नहीं है, यहाँ पे लीव पे है। और इसकी वजह, और क्लाइंट का जो अनएक्सपेक्टेड फीचर्स आते जा रहा है, एडिशनल फीचर्स, उस पे वर्क ऑन नहीं कर पा रहे हैं एंड दैट इज कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। हम्म ठीक है। तो देखो, वी हैव डन, लाइक यू हैव डन इट वेरी वेल टुडे, लाइक बिकॉज इट वाज योर फर्स्ट रोल प्ले इन टू ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन, बट आई वांट सम मेरे लिए एग्जांपल। बहुत अनएक्सपेक्टेड था। हाँ, बट जीबा यू हैव ट्राइड इट वेरी वेल, यू हैव पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग, आपने जवाब दिया अपने एंड पे, जितना हो पाया आपने जवाब दिया, दैट्स वेरी गुड, दैट्स अ गुड पॉइंट, गुड साइन दैट यू आर लर्निंग। जो पहले दिन एक्चुअली आप मेरे से मिले, आप बिल्कुल ही ब्लैंक हो गए, तो उससे बेटर पोजीशन पे है। एवरी डे हैव टू काउंट दैट हाउ यू आर इम्प्रूविंग एवरी डे। राइट। थिंक ऑन द पॉजिटिव साइड कि मैंने पहले दिन में कुछ भी नहीं बोला था और दूसरे दिन में मैं मैंने बहुत 4 लाइन। एम्बेरस थी, मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस थी कि मैंने क्या किया। मतलब ऐसे नहीं, मैंने अपना कैमरा ऑफ कर दिया, म्यूट हो गई। अब मैंने कहा मैं एकदम ब्लैंक हो गई, मैं क्या करूं। और सामने नहीं, वाले नहीं, मतलब गाइस है, वो सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कुछ नहीं सोचते हैं। यही सबसे बड़ा, आप सोचना बंद कर दो कि आज मैंने न्यू ईयर में यही रेजोल्यूशन लिया है कि मैं दूसरे क्या सोचते हैं दैट इज आउट ऑफ माई कंट्रोल। हाँ, हाँ, आपके बारे में राहुल क्या सोच रहा है कंट्रोल कर पाओगे आप? नहीं। और राहुल भी आपके बारे में आप जो सोच रही है राहुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इस कोई नहीं चीज को करता। सोच के वरीड होना, आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी उस चीज को। आई कैन ओनली इनफैक्ट कंट्रोल मी। बोलो अनमोल। इनफैक्ट कोई किसी के बारे में सोचता ही नहीं है अब। लाइक राहुल और मैं अपने बारे में, लाइक अपने कंटेंट के बारे में सोचा कि मैं अटक रहा हूँ, मुझे क्या यूज करना है, हम ये हाँ थोड़ी सोच हाँ, रहे हैं कि एग्जैक्टली ये सब कैमरा अपना बंद ही हो गया है। फॉल्ट देख रहा है। और सर मैं मेरा अभी आपको, मेरा लाइक सीन ये हो ये, जाता है कि बोलते बोलते ऐसा मेरे माइंड में जो वर्ड्स होते हैं वो भी ब्लैंक हो जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। नहीं, फिर ये ऐसा चीज ऐसा आपको लगता मैं है कि एक मैंने कुछ नहीं लिखने दिखाऊंगी, वाला। लाइक ये सॉफ्ट स्किल्स का एक ट्रेनिंग का पार्ट है ये। थिंग्स दैट वी कैन कंट्रोल, दिस इज कॉल्ड सर्कल ऑफ कंट्रोल। सर्कल 3 ऑफ सर्कल्स है हमारे लाइफ में, आई डू इट इन अ डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास कि सर्कल ऑफ कंट्रोल क्या होता है। ये ओके। मोटिवेशन देगा आपको जीबा, आपको, लाइक इट इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स की क्या चीज हमारे कंट्रोल में, क्या चीज नहीं है। और हम हमेशा प्रॉब्लम में फंसते जब हम आउट ऑफ कंट्रोल वाली चीजों में फोकस करते हैं। ओके। जो चीज हमारे कंट्रोल में हम उस पर फोकस ही नहीं करते हैं। तो हमारे कंट्रोल में सिर्फ हम हैं और कोई नहीं है। तो ये चीज आप जब सीख जाएंगे तो आप देखना बहुत कॉन्फिडेंट एंड डेफिनेटली होंगे। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, बहुत प्रोफेशनल्स देखे हैं जो इनिशियल स्टेज में इतना घबराते हैं, लेकिन जब वो सीख जाते हैं एंड जो कॉन्फिडेंस आ जाता है, दे आर आउटशाइनिंग इन द वर्ल्ड। सो बी कॉन्फिडेंट, आप अच्छा करो, हमेशा बोलो अपने आप से कि मैं आज पहले से बेहतर कर रही हूँ। इतना हाँ, बोल मुझे लो, फील हो रहा देखो है। क्या होता है। मुझे फील हो रहा है कि कल से बेटर था आज। यस, गुड, वेरी गुड। और मैं हमेशा ही एनकरेज करूंगी कि आपने अगर 2 लाइन भी बोला तो वो भी मेरे लिए बहुत है। ठीक है। सो मैं कभी भी डिस्करेज नहीं करूँ, गलतियां होने के लिए आप ओपन है, मैं चाहती हूँ आप गलती करो। ताकि आप उसे राहुल, सही। अनमोल, इन सभी से मैं कहना चाहूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप गलती करो, जितना गलती करोगे उतना इवैल्यूएशन होगा, उतना आप रिफाइन तरीके से सीख पाओगे। मेरा भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, बोलो बोलो। अभी जैसे मुझे मेरा फील्ड का काफी मतलब जो भी है, मैं हैबिचुअल हूँ उस चीज को करने के लिए, उसका मेरे को मार्केट वगैरह नॉलेज वगैरह सब चीजें एवरीथिंग है। हम्म यदि मेरे फील्ड से हट करके कुछ आता है ना, मेरा हम्म समहाउ 50% ऑफ जेबा मैं बन जाता हूँ। नहीं, क्या होता है ना राहुल, कि हम उस वक्त ना अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना होगा। जैसे मैं एग्जैक्टली। ऐसे काम मैं करती हूँ, आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेनर, मेरा तो इन सब ये वेंडर मैनेजमेंट ये सब से कोई लेना देना ही नहीं है, राइट। बट इस सिचुएशन में मुझे पर्सपेक्टिव बनाना पड़ेगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करने से हम कर सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस में जो होता है उसी एक्सपीरियंस को आप यूज करोगे इस सिचुएशन में, कि इसमें क्या क्या हैंडल, थोड़ा बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको यूज करना पड़ेगा कि ये सिचुएशन ऐसा है
और कई बार ना ये चीजें हैं कि हम कभी भी रोट लर्निंग मेथड में नहीं जाएंगे, लेकिन हमें जो 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 काम में हम हैबिचुएट, जैसे मैं खाना बनाऊंगी तो मैं हैबिचुएटेड हुई चीज बनाने में, जैसे ही मेरे पास नई रेसिपी आई तो मैं फेल कर जाऊंगी। एक गुड कुक कभी ऐसा नहीं होगा, वो नए रेसिपी को भी अपने तरीके से बना लेगा। कैसे हाँ, बनाएगा? प्रेजेंस ऑफ माइंड से। सपोज रेसिपी में लिखा है कि क्रीम देना है, पर तुम्हारे पास क्रीम है ही नहीं, तो क्या करोगे? तुम दूध का इस्तेमाल करोगे ना। हाँ, दूध से भी क्रीम बन जाए। तो ये जो सरल उपाय दे रही हूं मैं, यही लाइफ है। लाइफ में यही है सिर्फ। तुम जिस सिचुएशन में काम कर रहे हो उसमें तुम हैबिचुएटेड हो, तुम्हें पता ये है, जैसे किसी नई सिचुएशन में पड़े तुम सब कुछ भूल गए। तो ऐसा नहीं है, उसी सिचुएशन में आप क्या करते हो उसको अप्लाई करना है, और उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड देना कि मेरा हर चीज का आपको क्वेश्चन पुट अप करना है कि ये क्या है, इसका क्या प्रॉब्लम क्या है, और इसका जो चीज होनी चाहिए वो नहीं है तो उसकी जगह क्या हो सकती है। उसका क्वेश्चनिंग अल्टरनेटिव, योरसेल्फ उसका विल रिजॉल्व अल्टरनेटिव योर होना इश्यूज। तो ये सेल्फ मोटिवेशन है, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। मैं बार बार कहूंगी कि आई कैन फेस एनी काइंड ऑफ सिचुएशन एंड आई हैव द एबिलिटी टू रिजॉल्व एवरी इशू। मेरे सामने जो भी ऑब्स्टेकल आएगा मैं उसको रिजॉल्व करने में सक्षम हूँ। ये अपने आप को बार बार मोटिवेट कीजिए। मुझे एक चीज और मैं मुझे मतलब सर्च कर रहा हूँ बट मुझे वो उतना मिल नहीं रहा है कि मतलब किसी का जो मतलब बॉडी लैंग्वेज है या किसी को पर्सन को रीड कैसे करना है एग्जैक्टली या नियर बाय 90% 95%। वो हम्म। कंटेंट या वो ट्रेनिंग आप दे सकते हैं या वो कुछ सजेशन दे सकते हैं, ऐसा कंटेंट कहाँ मिलेगा? करेक्ट। मैं बॉडी लैंग्वेज का तो आपका करिकुलम में ही है। आई विल डू अ बॉडी लैंग्वेज क्लास ऑल्सो, कि हाउ कौन टू सा रीड बॉडी लैंग्वेज। समवन अदर, मतलब किसी दूसरे को कैसे रीड करना है? हाँ हाँ, डेफिनेटली। आपको अपना बॉडी लैंग्वेज भी सुधारना है, दूसरे का बॉडी लैंग्वेज भी रीड करना है। आई विल गिव अ क्लास ऑन दैट। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है। सो किसी का भी बॉडी लैंग्वेज कैसे जज करेंगे आप, ये एक पार्ट है, आप सही कह रहे हो। तो आपको ये दिक्कत होती है, लाइक एक्सपीरियंस, आप तो मार्केटिंग से, आपको तो होना ही नहीं चाहिए दिक्कत। मुझे दिक्कत समहाउ ना सीनियर्स के साथ ज्यादा होती है, दे आर वेरी एक्सपर्ट। जब भी मैं किसी अपने लेवल के पर्सन से मिलता हूँ ना समहाउ मुझे हम्म। आइडिया लग जाता है। बट हम्म। जैसे कि क्योंकि अब मेरा जो रोल है ना, कई बार क्या रहता है कि उसमें डिसीजन मेकर सीधा कंपनी का ओनर रहता है। हम्म। और कई जगह मुझे ना उनके साथ ही दिक्कत आती है कि मैं उनका जो मैनिपुलेशन है ना वो पहचान नहीं पाता कई बार। ऐसा हर बार नहीं होता बट कई बार हो जाता है कि वो जो सामने से जो उनका मैनिपुलेशन है ना मैं उसको पहचान नहीं पाता। आप बहुत सरल हो इस वजह से। तो तो मुझे वो थोड़ा सा उसमें तो मुझे अपना कमांड करना है। ठीक है, मैं डेफिनेटली डिस्कस करूंगी ये चीजें। आई विल हैव इन माइंड, मैं एक बार नोट भी कर लेती हूँ। अच्छा, आपने राहुल एक वर्ड यूज किया था, हरी, वी हैव टू हरी अप। सो ऑफिशियल टर्म में आप बोल सकते हैं हेस्ट। वी हैव टू वर्क इन हेस्ट। ठीक है। HASTE। HA। STE, हेस्ट। ओके। सो आज का डिस्कशन अच्छा ही रहा, कुछ नया सीखा हमने, और भी काफी नया फ्लो में था सीखेंगे। आज का सेशन। हाँ। डेफिनेटली। एंड काफी फ्लो में था आज मेरा का session। यस। मेरा क्या रिपोर्ट है? अनमोल, आपका रिपोर्ट सही है, बट आपको कॉन्टेक्स्ट समझ के बोलना है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट पे ही बोलना है, कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं। जैसे वो हम्म, कंटेंट राइटिंग वाला पार्ट या कंटेंट क्रिएशन वाला पार्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, इस प्रोजेक्ट से रेलेवेंट नहीं था वो। ठीक है। ये समझना है। एंड देन रेट ऑफ स्पीच में कई बार होता है कि आप बोलते बोलते एकदम रुक जाते हो, तो वो नहीं हम्म, करना है। हाँ, वो फ्लो आएगा, धीरे धीरे आएगा। अभी तो हाँ। आपकी एक दो ही क्लासेस हुई है। तो वो लाइक ऐसा होता है कि मैंने बोल तो पा रही है, बट मैं तो वो भी नहीं बोल पा रही। मेरी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो तुम बोल लोगी, जैसे हिंदी बोल रही हो वैसे इंग्लिश भी बोल लोगी। समय इतना सबका आसान आता है। नहीं, इतना आसान ठीक है। नहीं लग रहा। गिव योर चल। डेडिकेशन जीबा, एंड आई कैन गारंटी यू दैट यू विल स्पीक लाइक मी। ओके। एंड ओके। मैम आप डेली बेसिस पे एक टॉपिक दे सकते हो जो कि हम होमवर्क में वीडियो रिकॉर्ड में राइट। वो बोल राइट। सकें हाँ। इम्प्रूवमेंट। मैं भी बोलने वाली थी आज आपको। मैं एक टॉपिक दे देती हूँ आपको। यू कैन टॉक अबाउट द करेंट ट्रेंड्स ऑफ द वर्किंग वर्ल्ड। ठीक है। रिकॉर्ड योर सेल्फ ऑन द करेंट ट्रेंड्स ऑफ द वर्किंग वर्ल्ड।
कितने मिनट का वीडियो मैम बनाना है? 1 मिनट 2 मिनट, जितना आप बोल पाए, वन गो में जितना बोल पाए। वीडियो बना के भी बहुत रिजल्ट मिलेगा आपको, लाइक व्हेन यू मेक योर वीडियो, आपको खुद दिखेगा कहाँ अटक गए आप। और ये अगर प्रैक्टिस बनाएंगे, देखिए, प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स अ मैन परफेक्ट। और जब जहाँ की मैं अब जिस पोजीशन में हूँ, लाइक कहीं ना कहीं अभी भी मुझे प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। वी कैन नॉट लाइक एस्केप प्रैक्टिस। वी हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एवरी डे, तभी हम परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। परफेक्ट हो नहीं सकते, 100% परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, बट वी विल। हाँ। बहुत, ये आपने बहुत बड़ी बात बोली है। इसका रियलाइजेशन मुझे कुछ ही साल पहले हुआ था, जब मैंने लता मंगेशकर का एक वीडियो देखा था। उसमें उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने उनको बोला था कि मेरे वतन के लोगों, आपको इमीडिएटली मतलब गाना है स्टेज पे, 26 हम्म। जनवरी का ओकेशन था। तो हम्म। वो इंटरव्यू में कि मैं एकदम सरप्राइज हो गई, मतलब मैं एकदम के एक वक्त के लिए घबरा गई कि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया और मैंने मतलब उसके लिए रियाज नहीं किया है, कोई प्रिपरेशन नहीं की है। तो मेरे माइंड में ये आया कि इतनी बड़ी सिंगर और प्रैक्टिस की बात कर रही है, हाँ, कि प्रैक्टिस हर लेवल पे जरूरी होती है। हर लेवल पे जरूरी है। आप प्रैक्टिस एस्केप कर ही नहीं सकते, यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। अपने आप को रिफाइन करने के लिए हमेशा सोचना पड़ेगा। जिस दिन आपने सोचना बंद कर दिया कि मेरे में मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, वो उस दिन आपका गलत जर्नी शुरू हो जाएगा। ये मुझे भी मेरे गुरुओं ने सिखाया कि आप कभी सोच ही नहीं सकते कि आप सही कर रहे हो। आपकी प्रेजेंटेशन में कहीं ना कुछ तो कमी है, उसको कमी पूरा करना पड़ेगा आपको, लाइक नेक्स्ट सेशन में उसका अपग्रेडेशन होना चाहिए। यही होता है इवैल्यूएशन एंड अपग्रेडेशन। इसी माइंड मतलब इसी ढांचे में लाइफ चलती है, हर क्षेत्र में। चाहे आप फैमिली बोल लो, या प्रोफेशनल वर्क बोल लो, पर्सनल लाइफ बोल लो, हर जगह। ठीक है। So it was a nice session today, and I wish you all again a very happy new year. And 2026 is going to be very good for you. That is my prayer and blessings. You all are juniors to me. So, and don't worry, you will be super ready. And this year is going to give some good results to you. Sure. Thank you. Okay? Thank So, you. goodbye and good night. Good night. Thank you. Good night.